हेलो डी स्टूडेंट्स, आई एम पीयूष जिंदल। वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 168 ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਬਲਾਕ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਫਿਸਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ SSS ਬੋਰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਅੱਗੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੀਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਵਗੈਰਾ ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਥ ਪਲੱਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਬਾਈਨਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥ ਦੇ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਭਰੋਗੇ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ PYQ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 96ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਗੈਪ ਔਨ ਦਾ ਫੈਂਸ ਵੈਨ ਹੀ ਟੋਰ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਊਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਊਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਡਾਊਟ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਗੈਪ। ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦਾ ਟਨਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦਾ ਟਨਲ, ਦਾ ਟਨਲ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦਿਸ ਪਾਈਪ, ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਪਾਈਪ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਥਰੂ ਤੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਥਰੂ ਦਾ ਗੈਪ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਪ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਗੈਪ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ। ਗੈਪ ਔਨ ਦਾ ਫੈਂਸ ਵੈਨ ਹੀ ਟੋਰ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫਸ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਫੈਂਸ। ਔਨ ਦਾ ਫੈਂਸ, ਫੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ। ਫੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਉਰੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਰੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਔਨ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆਗਾ ਤਾਂ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ठीक है, हम तो ध्यान देखो ये सैमी सर मैं कहता सरकमफ्रेंस है, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस है, आ वाली चीज जी हैगी है। सरकमफ्रेंस लिए आप की यूज करेंगे, इन यूज करोगे, ऑन यूज करोगे, ऑन यूज करोगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, समझ आ गया। चलो हुण आप गल करते हैं, अगर सपोज करो कि मैं आ वाले रीजन की गल करा, अगर सपोज करो मैं ये वाले रीजन की गल करा, आ वाला रीजन हुण की यह बाउंड्री है? नहीं, दिस इज नॉट अ बाउंड्री, दिस इज द एरिया। तो एरिया इंट्रोड्यूस करने लिए कीदा यूज करते हैं? इन दा यूज करते हैं। इस चीज का तुसीं ध्यान रखना, ठीक है। मैं कह देना जी देयर आर 5 सिटीज इन दिस स्टेट, तो उस स्टेट का एरिया कोई, उस स्टेट एरिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, उस एरिया ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, एरिया ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ कीदा यूज करता? इन दा यूज करता। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ मैं कहता देयर आर 5 members माय फैमिली, की आएगा? इन। पता है क्यों? फैमिली भी एक इनक्लोज्ड स्पेस है जी, ये भी एक एरिया जिहदे विच 5 मैंबर्स ने, तो तुसीं इस चीज़ को रैफर करने के लिए हमेशा किहदा यूज करते हैं? इन दा यूज करते हैं। इन्नी गल समझ आ गई? ठीक है, वेरी गुड। हुण आ जाओ थोड़ा मैं आंसर दस देना, ठीक है। जो आंसर है की है जी, ऑन नूं कट के आपां की यूज करांगे? इन। वाई सो? अगर आप फेंस लिखा है फेंस लिए तो आप ऑन यूज करांगे, क्योंकि फेंस इज अ बाउंड्री। ठीक है, फिर क्यों इन आ रहा है? क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट रूल्स। तुसीं अगर रूल याद कर लोगे ना यार कि अगर फेंस लिखा है तो इन यूज कर लो, वो तक कुछ होंदा ही नहीं है लैंग्वेज। ठीक है, पेपर पंजाब के पेपर का क्वेश्चन है ना, अगर तुसीं कहोगे बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, गल तो सारी समझण दी है। हुण तुसीं देखो ये की लिखा है, जिहड़ा इन यूज हो रहा है किहदे लई यूज हो रहा है? फेंस दे लई यूज हो रहा है, तो गैप दे लई यूज हो रहा है? गैप दे लई यूज हो रहा है। ठीक है, गैप दे विच की होगा? एरिया होगा। मैं कह रहा जी गैप है, जो गैप है गैप दे विच की होगा? एरिया होगा। तो उस एरिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप किहदा यूज करांगे? इन दा यूज करेंगे। दैट्स वाई कि बी पार्ट दे विच गलती है जी, तो आप ऑन नूं कट के की कर देंगे? इन। तक की आंसर आएगा विष्णु वाज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप इन द फेंस व्हेन ही टोर हिज शर्ट। तो अगर तुसीं ऑन यूज कर लिया ना, ठीक है, देखो तुसीं ऑन क्यों यूज कर रहे हो? मैं दसदा ऑन क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज यू आर रेफरिंग टू द सरफेस, यू आर रेफरिंग टू द सरफेस। हुण तुसीं इहदे एरिया नूं रेफर कर नहीं रहे बई, जो तुसीं बाउंड्री नूं रेफर करोगे तो तुसीं सरफेस नूं रेफर कर रहे हो ना, और लाइन नूं रेफर कर रहे हो। लाइन का मतलब होता सरफेस। ठीक है, ऑन द बाउंड्री कहोगे या इन द बाउंड्री कहोगे? ऑन द बाउंड्री, क्योंकि तुसीं बॉल टप गई बाउंड्री नूं तो उहदे सरफेस नूं टप के गई है ना, गल समझ आ गई। लेकिन जो तुसीं उहरे कहता गैप ऑन द फेंस, तो जिहड़ा गैप है ध्यान नाल समझना, जिहड़ा गैप है फेंस, सपोज करो कि फेंस इस तरीके का बनाया हुआ है, ध्यान नाल समझो, एवें दा फेंस। ठीक है, फेंस दे विच फेंस जिहड़े 2 तारा दा बनया हुआ है, ठीक है, एवें दा फेंस बनया हुआ। तुसीं देखा होगा इंडिया पाकिस्तान दे विच जिहड़ा ओह है बाउंड्री है, उन्हां दी अपनी तार बनी हुई, अपनी तार बनी हुई। जे कोई इंसान विचों पार करूगा तो उसदी शर्ट फट जूगी। जिहड़ा विच एरिया है ना, दैट उहदे लिए आपां इन दा यूज करांगे। तो वो इस एरिया की गल कर रहा है, अगर वो इस एरिया की गल कर रहा है तो आपां किहदा यूज करांगे? इन। नहीं क्लियर हो जी, याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Foolishly, Meena threw some water on electric heater when it catches fire and she got shock. got a shock. हुण ध्यान नाल समझोगे, देखो ध्यान नाल की लिखा है। Foolishly, Meena threw some water on electric heater. ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो, ऑन यूज कर लिया। पता ऑन क्यों यूज किया? क्योंकि यू आर रेफरिंग टू द सरफेस ऑफ दिस एरिया, सॉरी सरफेस ऑफ दिस हीटर। ठीक है, ओदे हीटर दे सरफेस दी तुसीं गल कर रहे हो, ओदे सरफेस ते पानी पिया। ठीक है, तां तुसीं ऑन दा यूज किया। समझ आ गया? when it catches fire, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਥਰੋ ਥਰੂ ਥਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕੌਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਐਟ ਯੂਅਰ ਲੈਵਲ, ਬੀ ਫਾਸਟ। आई होप तुसीं कर लिया होगा। हुण देखो मैं तुहानूं समझाने की कोशिश करदा, ध्यान नाल समझो। इस तो पहले मैं तुहानूं 2-3 गल्लां होर दसूंगा। ठीक है, 2-3 वर्ड्स तुहानूं होर दसूंगा, ध्यान नाल देखो की लिखा है। द ड्राइवर डिडंट एक्सीड एट द डिमांड ऑफ द पीपल एज ही वॉज अवेयर ऑफ द रिस्क इनवॉल्वड इन इट। एक फ्रेज दिता होया, ये फ्रेज नूं रिप्लेस करना है कि यह दसना भी किहड़ा फ्रेज नाल रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यह एक सिंपल जिहा क्वेश्चन है। तो और एक वर्ड यूज किया है, कि यूज किया है एक्सीड, ACCEDE। तुसीं एक वर्ड देखो कि लिखा है CEDE, एक रूट वर्ड होता है। ठीक है, ये रूट वर्ड नूं ध्यान नाल पढ़ना। मेरे लिखा है CEDE, इनू हजे छड्ड दो। एक वर्ड होर होता है दैट इज CEED, एक वर्ड होर होता है दैट इज CESS, एक वर्ड होर होता है सीज। ठीक है, ये तीनों रूट वर्ड ने जिन्हां दा मतलब होता है, पहला मतलब होता है दैट इज गो अवे।
एक मतलब होर हुंदा गो अवे, एक मतलब होर हुंदा दैट इज विदड्रॉ, एक मतलब होर हुंदा दैट इज विदड्रॉ एंड यील्ड, ठीक है, दैट इज यील्ड। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स ने, ध्यान नाल समझना। तुसी प्रोसीड तो सुनिया होगा, प्रोसीड का भी मतलब की होंदा मूव अवे, मूव अवे तो की कह सकते मूव फॉरवर्ड। प्रोसीड एक वर्ब है, इस तो ही की बन जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या, समथिंग इज इन प्रोसेस, इसका मतलब कोई चीज प्रोसेस दे विच है, कोई चीज की है प्रोसेस दे विच है, वो टाइम दे विच अगे जाएगी या टाइम दे विच पीछे जाएगी, अगे जाएगी ना, ऑब्वियस ही गल है, तो यदा मतलब भी मूव फॉरवर्ड। इन्नी गल समझ आ गई। अच्छा, फिर तुसी एक होर सुनेगा एक्सीड, एक्सीड का मतलब की होंदा है बियॉन्ड समथिंग, एसटीएस मतलब समथिंग, बियॉन्ड समथिंग का मतलब गो अवे, दूर जा रही है वो चीज भी। एक्सीडेड द लिमिट का मतलब की है लिमिट क्रॉस कर गई। गल समझ आ गई। ये सुन लिया, होर सुनिया होगा तुसी, दैट इज रिसेशन, रिसेशन वर्ड सुनिया होगा, सॉरी, रिसेशन का मतलब की होंदा है गो बैक। भाई वर्ड सुने नहीं सुने, ऑब्वियसली सुने होंगे। तो रिसेशन 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜ਼, डिसीज का मतलब की होंदा समथिंग हु इज डेड। विदड्रॉ का मतलब की होंदा, विदड्रॉ का मतलब की होंदा पुल आउट करना, मूव बैक करना। पैसे कढ़वाने ने ना, विदड्रॉ करा लो जी 5000 10,000 50,000, तो पुल आउट पैसे बाहर कढ़ लो, आउट का मतलब बाहर, ठीक है। तो मूव बैक का मतलब ਆਪਾਂ फोर्सिस विदड्रॉ कर लिए, ठीक है। मैं ये कंट्रैक्ट विदड्रॉ करदा, मैं पोजीशन तो विदड्रॉ करदा, मैं पीछे हटदा, पीछे हटन का मतलब की है मूव बैक, ठीक है। विदड्रॉ का मतलब, यील्ड का मतलब हम दस दो, यील्ड का मतलब की होंदा, ध्यान नाल समझो। यील्ड का सब तो एक नाउन होंदा है जिहदा मतलब होंदा है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, टोटल प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, या फिर इन्हों आप आउटपुट भी कह सकते हैं। आ हाई रिडक्शन इन व्हीट यील्ड इन मध्य प्रदेश। तुम अगर न्यूज़ पढ़ते हो, करंट अफेयर थोड़े पढ़ते हो, तो सुनिया होगा मध्य प्रदेश के बहुत ज़्यादा कणक खराब होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि किन्नी ज़्यादा बारिश पै रही है ना, साइक्लोन वगैरह है, तो वो करके बहुत ज़्यादा फर्क पिया। तो दिल्ली के भी इन्नी ज़्यादा बारिश हुई है कि पिछले 70 सालों के नहीं बारिश हुई। तो MP के पूरा पंजाब कणक लैंदा, ठीक है। तो MP के इस बार कणक वध जूगी, कि 3000 रुपये कुंटल समथिंग, 2800 रुपये कुंटल इस बार वध गएगी। तो जिन्हें अभी तक नहीं लेती ले लियो भाई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यील्ड, ठीक है, इन रिडक्शन इन व्हीट यील्ड, ठीक है। तो एक मतलब ये होंगे, ये मैं सीखा सी, ये वर्ड 2013 के कैमिस्ट्री लैब के मैंने हजे भी याद है, टीचर ने सिखाया था। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस, आउटपुट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट भी कह सकते हैं। एक यील्ड का मतलब होंगे टू गिव इन, एक यील्ड का मतलब क्या होंगे टू गिव इन। तुम कहोगे सर गिव अप तो सुनिया, गिव इन नहीं सुनिया, फिर की हो गया, सिखा देने, ठीक है। एक है गिव अप, एक होंगे जी गिव इन, होंगे तो बहुत ने, फिलहाल आप ही करांगे, ठीक है। गिव अप का मतलब होंगे टू स्टॉप ट्राइंग समथिंग, टू स्टॉप ट्राइंग समथिंग, ठीक है। वो बंदा लड़ रहा सी, फाइट कर रहा सी, फाइनली ही गिव अप, उन्हें फाइट करना, ट्राई करना बंद करता, समझ आ गया। दैट इज कॉल्ड गिव अप। गिव इन का मतलब की है टू एडमिट दैट यू आर डिफीटेड। तुसी ये चीज मान ली, ਉਹਦੀ हाँ छान वाली भी मैं हार गया, तो ये डिफरेंस है, ये चीज़ का ध्यान रखना। यह पेपर के मतलब होंगे यील्ड, यदा एग्जैक्टली में नहीं होता यील्ड,
ठीक है, ये असिस्टेंट ਡੀਐਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ਵਧੀਆ क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन की सी मैं तुम्हें भी दिखा देना, मैं लिखा है शायद ये वाला क्वेश्चन सी। पढ़ो की लिखा है, दो ही वॉज सराउंडेड बाय द आर्मीज ही रिफ्यूज्ड टू गिव ब्लैंक। हालांकि आर्मीज ने घेरिया हुआ सीगा, फिर भी उन्हें एडमिट नहीं किया कि मैं हार मान ली। ही डिडंट एडमिट। की आ जाएगा जी? तो स्टूडेंट्स मतलब जनरली स्टूडेंट्स ने की पढ़िया होंगे, आपां की पढ़िया होंगे गिव अप। तो सब तो ज्यादा आप किहड़ा ऑप्शन चूज करांगे? नहीं, लेकिन ए वाला ऑप्शन से। ठीक है, ये समझ आ गया? ठीक, फिलहाल वापस आ जाने। हुण आपां ये वर्ड्स की गल कर रहे सीगे। ठीक है, हुण इस तो ये वाले वर्ड ते आ जाओ, सीड। सीड वर्ड ते अगर आपां गल करांगे, दैट इज कॉल्ड सक्सीड। ਇਹਦਾ मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ मतलब भी सेम ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, सक्सीड। सक्सीड का मतलब की होंदा है कि किसी चीज़ तो अलग होके इंडिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, जिवें तुसी किसी कंपनी तो टुट गए एंड तुसी इंडिपेंडेंट हो गए, तो तुसी बैकआउट कर गए ना, मूव बैक कर गए, तुसी ऐ समझ सकते, या विदड्रॉ कर गए। ठीक है, तुसी वो सुनिया होगा रिसीड। रिसीड का मतलब की होंदा है ग्रेजुअली किसी चीज़ का पिछे जाना। हेयर लाइन होंगी, आप कहते हैं हेयर लाइन रिसीड करने लगी, मतलब बाल पीछे जाने लग गए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मूव बैक, गो बैक। ठीक है, जो भी। एंड रिसीड तो एक होर रूट वर्ड है, दैट इज री। री का मतलब की होंदा है किसी चीज को दोबारा करना, रिपीट करना। जिवें तुसीं एक वर्ब सुनी होगी, दैट इज डू। डू का मतलब की होंदा है कोई काम करना। ठीक है, अगर एक वर्ब है, ठीक है, जैसे मैं कहना ही डिड इट, तो मतलब उन्हें एक एक्शन परफॉर्म किया। एक वर्ब होंदी है रीडू, REDO, रेडू। ठीक है, अंडू तो सुनिया होगा, एवं रेडू भी होंदा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस Z इज इक्वल टू अंडू एंड कंट्रोल प्लस Y या R जो भी होंदा है, दैट इज रेडू। ठीक है, दोबारा उस चीज को करना, तो ये भी एक वर्ब है। तुसी रीप्ले तो सुनिया होगा। ठीक है, तुसी रीयूनाइट सुनिया होगा, तुसी रिकवर सुनिया होगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो मतलब इस तरीके नाल तुसी याद रखना। एंड इस तो ही हुण आपां आ रहे सीगे किते एक्सीड ते, वापस उत्थे आ जाओ जी जिथे लिखा है। की लिखा है? एक्सीड। ਇਹਦਾ मतलब भी कुछ एवं होंदा है। एक्सीड का मतलब की होंदा है टू एग्री, पेन कलर चेंज कर लेने, टू एग्री टू डिमांड्स, टू द डिमांड्स of somebody or something। ठीक है, he acceded to the demand of his resignation। तो मान गया जी। ठीक है, तो ही एक्सीडेड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्सीड का मतलब की है जी एग्री, और एग्री के नाल आपां की यूज करांगे टू, एग्री टू समथिंग। ठीक है, तो एग्री विद भी होंगे, एग्री विद अ पर्सन एंड एग्री टू समथिंग, तो उहदे नाल की यूज करांगे टू। तो एक्सीड के नाल हमेशा याद रखना की यूज करांगे टू। और एक्सीड तो मैंने एक और भी वर्ड याद आ रहा, एक्सीड हो गया, एंड एक और वर्ड याद आ रहा है, दैट इज प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब की होंदा है जो पहला निकल गया। ठीक है, जिवें सपोज करो कि हुण मेरी जॉब लग गई। ठीक है, मैं बैंक के जॉब लग गई, तो बैंक के मैं लग गया PO, सपोज कर लो। ठीक है, वैसे आई हेट दिस जॉब। ठीक है, मैं कदे ना लगा, जो मैंने फ्री चीज़ मैं तां भी नहीं लगा। की कर लेने, इमेजिन कर लेने। ठीक है, मैं नहीं कोई होर लग गया, चलो PO लग गया। ठीक है, एंड वो पोजीशन है PO, तो उस तो पहला भी उस सीट से कोई बैठा होएगा। ठीक है, उस तो पहला भी कोई सीट से बैठा होएगा। तो सपोज करो कि इसका नाम है P, इस तो पहले जो है R, इस तो जो बाद आऊगा दैट इज कॉल्ड S। ठीक है, तो आप कह सकते हैं R प्रीसीडेड P इन द जॉब, मतलब जो पहला निकल गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रीसीड। एंड जो बाद में आता है, जिन्होंने आप सक्सेसर भी कहने, सक्सेसर या फिर जो फॉलोअर भी कहने, दैट इज कॉल्ड सक्सीड। ठीक है, तो ये थोड़े वर्ड्स का तुसीं ध्यान रखना सी। तो एक्सीड का मतलब की होंदा जी टू एग्री। ठीक है, तुम दसता हुण ये तो दो तीन वर्ड्स होर दस देना। एक्सीड तो मतलब होर दस देना, ਇਹਦਾ मतलब की होंदा टू अबाइड, अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड का हमेशा बाय द यूज करते हैं। एंड अगर मैं लिखा टू कंप्लाई विद द रूल्स।
ठीक है। एंड ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਬਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 2-3 ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਰਮਿਸਟ, ਕਨਫਰਮ PYQ ਬੈਚ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਰੇ ਐਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੀਵਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨॉन ਕਨਫਰਮਿਸਟ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨॉन ਕਨਫਰਮਿਸਟ, दैट इज कॉल्ड डिफाई। आई डिफाई दिस थ्योरी, आई डिफाई दिस थ्योरम, मैं इस चीज़ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ डिफाई, ठीक है। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਨॉन ਕਨਫਰਮਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की कहता है, दो हिज एक्शंस वर severe criticism he didn't lose his temper, ठीक है। lose his temper वरना ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, that is cool, ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ idiom ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ lose his temper, ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ idiom ਯਾਦ ਆ, that is face the music। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। चलो वैसे ही याद आ गया दास्ता, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना, दो हिज एक्शंस वर सीवियर क्रिटिसिज्म, तो ध्यान नाल देखो की लिखा है, ਜਿਹੜੇ एक्शंस ने उन्होंने क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया। तो इसका मतलब एक्शंस ने सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर देखना कि ये डूअर है, रिसीवर है, रिसीवर है। अगर एक्शन अपना सॉरी सब्जेक्ट अपना रिसीवर होंगे तो वर्ब जी यूज होंगी है वो कि यूज करते हैं आप, एक्टिव या पैसिव, पैसिव। पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर की होंगे, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितने है जी, ये इतने हैगी है, नहीं इतने हैगी है, वर्ब प्लस सीवियरली क्रिटिसाइजिंग थर्ड फॉर्म नहीं है, हटाओ। एंड हैड सीवियरली क्रिटिसाइज्ड हैड लिखा है जी, बी नहीं है, हटाओ। एंड वर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ए, सही। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो नहीं समझ आया छोड़ दो, इतना नहीं सोचते, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਡਾ 247 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਡਾ 247 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ठीक है। वो मतलब इंटरव्यूअर एकदम चुप एंड तो उन्होंने क्या तुम दसांगे, विल रिवर्ट यू बैक। रिवर्ट वर्ड का मैनू याद आता, ठीक है। तो ये बारे भी कदे गल करांगे, रिवर्ट वर्ड सही है गलत, ठीक है, तुसीं दस्सिओ मैनू, ठीक है। चलो हम ध्यान नाल देखना कि यह हमारी मेन क्लॉज है जी, ठीक है। यह अपनी सबऑर्डीनेट क्लॉज है। सबऑर्डीनेट क्लॉज च कदे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हुंदा, ठीक है। एंड उरे लास्ट से क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। यही गलती उन्हें की सी, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਕਮਸ ਫਰਮ, ਵੇਅਰ ਫਰਮ ਸ਼ੀ ਕਮਸ, ਗਲਤ। ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਕਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। नैक्सट पता की है, देखो मैं तुहानूं एक गल सोचने वाली गल है, कोई रूल नहीं है यार, सोचने वाली गल है। तुसीं सामने वाले नूं पुछ रहे हो, ये चीज़ तुसीं सामने वाले नूं खुद कह रहे हो, तुसीं खुद ये चीज़ बोल के देखो, थिंक 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 एंड थिंक, खुद सोच के देखो भी तुसीं की पुछ रहे हो। तुसीं एक्चुअल में तुसीं एक्चुअल दे जो जगह का नाम पुछ रहे हो, या फिर तुसीं ये पुछ रहे हो कि वो इंसान गया या ना गया। जिहड़ा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो यस और नो दे विच होगा, या फिर उस प्लेस का नेम होगा, नेम ऑफ द प्लेस। सोच के देखो, खुद जो तक खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे ना यार मेरी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ,
ठीक है, दैट्स वाई ये अफर्मेटिव केस रहेगा ना कि इंट्रोगेटिव केस रहेगा। अफर्मेटिव केस है तो इन्वर्जन नहीं लगेगा, इन्वर्जन नहीं लगेगा तो बी हटा दो, ये आंसर। ठीक है जी, हजे भी नहीं समझा छोड़ दो। नेक्स्ट, द फैमिली गेव फादर अ गोल्ड वॉच ऑन द ब्लैंक। ठीक है, ऑन द ओकेजन। ठीक है, कितने ओकेजन ते ओकेजन के स्पैलिंग का ध्यान रखना, बहुत बार आते हैं OCCASION। ठीक है, हुण एक चीज़ का ध्यान रखना कि लिखा है ऑन। ऑन जो है ना ये ओकेजन्स ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने के लिए ਆਪਾਂ यूज करते हैं। ठीक है, शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन विनिंग द मैच, शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो वो ऑन आप ਤਾਂ यूज करते हैं क्योंकि आप किसी ओकेजन ਨੂੰ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओकेजन्स ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने के लिए आप हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑन। ध्यान रखना जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन अच्छा लगे मैनू। ठीक है, तो खुद ट्राई करो एक बार, बी फास्ट। जो भी थोड़ा लगता है यार भी हाँ इस तरीके नाल असीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप तुसीं देख लिया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, की है जी, देख लो, पढ़ लो। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग स्पैलिंग्स ने, सिर्फ एक वर्ड है जिहदा सही स्पैलिंग है जी, तुसीं देख लो की है, मस्कर। मस्कर का मतलब की हुंदा है, स्पैलिंग जिहड़े हैगे ने MASSACRE। ठीक है, MASSMA, ए गलत हो गया, CAR गलत है, MASS गलत है, ये सही। मस्कर एक नाउन है, मतलब की हुंदा है मास्कुलिन। एक तुसी होर वर्ड सुनेगा, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। एक होर वर्ड सुनेगा, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। साइड मतलब मारना। ठीक है, हुन मास्करे, कार्नेज एंड जेनोसाइड, इन्हां दे की डिफरेंस है। जिहड़ा मास्करे है ना, इहदा मतलब हुंदा कि इंटेंशनली डेलीबरेटली किसी का खून करना, मास किलिंग करनी। तुसीं जिवें कि स्कूप डूब ते एक वीडियो आई है, तुसीं अगर उन्होंने फॉलो कर रहे हो, स्कूप डूब यूट्यूब ते सर्च करना, उन्हें कल ही वीडियो पाई है कि यह एक मास्करे है जो भी दिल्ली दे विच हो रहा है, कितनी डेथ्स हो रही ने। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं भी यार जो डेथ्स हो रही ने ना, नैचुरल डेथ्स नहीं है। हम आप ये नहीं कह सकते यार भी कोविड करके डेथ्स हो रही ने, नहीं, किसी को टाइमली गाइडेंस नहीं मिली। ठीक है, किसी को टाइमली बैड नहीं मिले, समझ रहे हो इस चीज़ को, किसी को एंबूलेंस नहीं मिली, किसी को पैसे नहीं है। ठीक है, गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, कि अवेयरनेस नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते भी जी अज के टाइम 4 या 5,000 मौतें हो रही डेली भी वह रीजन कोविड है, नहीं, वह रीजन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर बाकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है, भी गवर्नमेंट की गलती है भी 1 साल के तुसीं की कीता। ठीक है, 1 साल खुद को तैयार कर सकते जो भी है। ठीक है, तो उस तरीके उन्होंने इस क्वेश्चन को रेज किया कि ये डेलीबरेट किलिंग है यार। ठीक है, हुण तुसीं इहनूं नैचुरल नहीं कह सकते। तो जेनोसाइड जिहड़ा हुंदा, कार्नेज जिहड़ा हुंदा, इट कैन बी नैचुरल एज वेल एज प्लैंड। ठीक है, जिवें मैं कहां प्लेन क्रैश वगैरह हो गया, टाइटैनिक का हिस्सा सीगा, दैट इज नैचुरल। ठीक है, उहदे किसी गलती थोड़ी ना यार। ठीक है, वो नैचुरल, दैट इज कार्नेज। जेनोसाइड का मतलब की हुंदा जो कोई मास किलिंग होंगी है, दैट इज रिलेटेड टू सम कम्यूनिटी, जिमें कि मैं कहां 1984 के दंगे। ठीक है, या फिर जलियांवाला बाग का किस्सा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। ठीक है, क्लियर है जी, आगे चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पलरी का मतलब डू समथिंग लाइक दैट कैन सैट एग्जाम्पल, यह जा कुछ अनोखा करता, यू हैव डन समथिंग हिस्टोरिक, भी हिस्टरी दफन हो गया। ठीक है, दफन नहीं, हिस्टरी की बुक के कायम हो गया भी यार उन्होंने याद करेंगे सारे। ठीक है, ई नहीं आएगा, दैट इज नेक्स्ट है एम्बेरस, ये डबल आर आएगा। ठीक है, दिस इज एक्सीलेंस, EXCELENCE नहीं आएगा, एनवियस, ये सही है जी। एनवियस का मतलब क्या होता है, यू वांट समथिंग दैट अदर्स हैव। ठीक है, जेलसी नाल तुसीं रिलेट कर सकते हो। एनवीएस ते जेलसी दे विच, एनवी ते जेलसी दे विच की फर्क हुंदा है, बहुत ही अच्छे तरीके नाल बैच दे विच पढ़ाया गया जी। ठीक है, जेलस एक नाउन है, सॉरी जेलस एक एडजेक्टिव है, एनवीएस भी एक एडजेक्टिव है, दीज बोथ आर एडजेक्टिव्स। एंड अगर मैं गल कर रहा एनवी, एनवी इज अ नाउन एंड जेलसी इज ऑल्सो नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हुण आप देखना जी एनोलॉजी के क्वेश्चन ने। ठीक है, जेन्युइन, स्टिमुलेटेड, अनअफेक्टेड ब्लैंक। हुण तुसीं इन्हां दोनों दे रिलेशन देखो की है। जेन्युइन का मतलब समथिंग दैट इज अनटच्ड। ठीक है, समथिंग दैट इज रॉ, समथिंग दैट इज ओरिजिनल। स्टिमुलेटेड का मतलब की है जिन्हों प्रोसैस किया गया, समथिंग दैट इज प्रोसैस्ड। अगर उन्होंने प्रोसैस किया गया तो इट मीनस इट इज अफेक्टेड।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਨਅਫੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬਿਗ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡੈਮੇਜ। ठीक है, एंड डायनामिक इज रिलेटेड टू मोशन। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टैटिक, समथिंग दैट हैज नो मोशन। समथिंग एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब तुसी किसी चीज ਨੂੰ एलिवेट करता, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਫੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ दैट इज ए। नेक्स्ट, स्टेज एक्टर रोस्ट्रम ब्लैक। स्टेज किथे परफॉर्म करता है, मतलब ये ਉਹਦਾ प्लेटफॉर्म है। दिस इज एक्टर्स प्लेटफॉर्म वेयर ही परफॉर्म्स whatever he want, he does। जो भी ਉਹਦਾ प्रोफेशन है, जो भी वो काम करता वो किथे करता, स्टेज से करता। ठीक है जी। ਤੇ रोस्ट्रम की ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ डायस, रोस्ट्रम की ਹੁੰਦਾ डायस, ਜਿਹੜਾ टीचर्स ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। मैं अजे लेके आना, ठीक है, फिर मैं खड़ा करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायस। ठीक है, तो डायस से कौन करता काम, ठीक है, पायलट नो, ठीक है, सोल्जर नो, ठीक है, सोल्जर वॉर मैदान दे विच, एरोप्लेन दे विच, ठीक है, मतलब इनू एयरप्लेन दे विच कह सकते हैं, या फिर एटमोसफेयर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रोस्ट्रम तो नहीं होएगा। ठीक है, एंड आर्कबैट मतलब की होंगे भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਤੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੱਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, दैट इज कॉल्ड, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ठीक है, लास्ट इज ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है वेरी गुड स्पीकर। एक ऐसा जिहा स्पीकर जिहदा इन्फ्लुएंस बहुत है, अगर वो कुछ कहेगा ना तो सामने वाली जी ऑडियंस है, ठीक है, वो दंग रह जाएगी, मतलब वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। मिस्टर मोदी इज अ ग्रेट ऑरेटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑरेटर ने, उन्होंने जी स्पीच है ना, ऑरेटर का मतलब ये नहीं है भी तुसी भी कुछ ऐसा जा जिवें मैं कहता भी हाँ तुहानूं फ्री पैचेस मिलणगे, वो नहीं। ठीक है, ऑरेटर का मतलब की है कि तुहानूं पता है भी कित्थे पॉज करना है, किहड़ी चीज़ ते स्ट्रैस करना है, किहड़ी चीज़ नूं हाईलाइट करना है, किहड़ी चीज़ नूं पिछे रखना है। वो एक जेडे एटिकेट्स ने, या फिर वो जेडे एक मैनर्स ने, ठीक है, जेडे वो एक एटीट्यूड है, या फिर जेडे वो टैक्टिक्स ने, वो जो थोड़े कोल होणगे वो तुहानूं की बनांदा है, ऑरेटर। ठीक है, तो रोस्ट्रम ते जिहड़ा बंदा परफॉर्म करेगा दैट इज ऑरेटर। ठीक है, डी ऑप्शन। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स द ऑफिसर कुड नॉट रिडीम हिज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब इज्जत। ठीक है, इन स्पाइट का मतलब इन स्पाइट, दिल्ली आप और यूज वर्ड करते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स द ऑफिसर कुड नॉट रिडीम, ठीक है, रिडीम हिज प्रेस्टीज। तो ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ आएगा, रिडीम का मतलब की होंगे किसी चीज़ को रिकवर करना, किसी चीज़ को रिकवर करना। तो रिकवर देखो पहले तो ही पिया जी। ठीक है, तो यह ऑप्शन की आ जाएगा रिकवर। ठीक है, आई होप तुहानूं समझ आएगा। हाँ, नेक्स्ट, देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। अबंडेंट का मतलब की होंगे भरपूर मात्रा दे विच, मोर दैन रिक्वायर्ड, मोर दैन डिजायर्ड, मोर दैन। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कंसिडरेबल का मतलब की होंगे समथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड, भी एनी का अमाउंट हैगी है, सफिशिएंट इनफ। सफिशिएंट एंड कंसिडरेबल दोवें सेम ने। एंड एडिकेट का मतलब की होंगे समथिंग दैट इज गुड इनफ। ठीक है, अपने को एडिक्वेट पावर सप्लाईज ने, ठीक, अपने को एडिक्वेट फैकल्टीज ने। ठीक है, अपने को एडिक्वेट या एडिक्वेट कह सकते हैं, कंसिडरेबल कह सकते हैं, या फिर कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड। तो मैं दस देना, ये देखो कि लिखा एबल लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं लिखा कंसिडर, कंसिडर एक वर्ब है, ये आप की लगाता एबल। एबल की होंगे अपना एक रूट वर्ड है, ये वैसे एडजेक्टिव है। तो एबल का मतलब की है एबिलिटी। ठीक है, तो जिहड़े भी वर्ब दे नाल तुसीं एबल यूज कर दोगे तो यदा मतलब उस जिहदे लिए यूज करोगे उस दे विच यह एबिलिटी होगी कि वो एक्शन नूं परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, जिवें मैं कहां कि टीचेबल, टीचेबल का मतलब की है कि दिस कंसेप्ट, मैं कहता एक्स कंसेप्ट है, एक्स कंसेप्ट इज टीचेबल। ਇਹਦਾ मतलब की है समथिंग दैट कैन बी टॉट, ये सिखाया जा सकता है। बात गल समझ आ गई। मैं कहता समथिंग इज प्रेफरेबल, इट कैन बी प्रेफर्ड। इफ आई एम सेइंग समथिंग इज कंसिडरेबल, इट मींस इट कैन बी कंसिडर्ड।
इट हैज़ गॉट द एबिलिटी टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो जाएगा। एंड ਇਹਦਾ आंसर क्या है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब की है मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। प्लेंटी का मतलब होता है हमेशा ज़्यादा, ठीक है, मोर। नेक्स्ट, ऑन द स्पुर ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। ऑफ द मूवमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा होगा देख के कि यह देखो एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलीब्रेशन, ਇਹਦਾ आंसर यही है। मतलब की है जी जो ਤੁਸੀਂ उस मूवमेंट से कर रहे हो बिना सोचे समझे, अनप्लैंड। अपनी बुक का पहला ही वर्ड है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है शायद, या फिर केड़ा क्वेश्चन है, एडवांटेशियस, ठीक है। मैनू याद नहीं आ रहा हूँ कितने है, ठीक है, तो मैं तुहानू दिखा भी दिंदा। एडवांटेशियस वर्ड है, वो भी बहुत अच्छे तरीके नाल करवाया सी, तुसीं ध्यान नाल तुसीं दिख रहा होगा। 11वां वर्ड देखो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडवांटेशियस, ठीक है। ये डिप्टी मैनेजर है, देखो पेपर रिपीट होंगे सारे क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ठीक है, सारे पढ़े हुए ने ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ प्लैंड, ठीक है। ਇਹਦਾ एंटोनियम ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ऑपोजिट ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ प्लैंड, ठीक है। एंड ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, दैट इज इनप्रॉम्प्टू। इनप्रॉम्प्टू स्पीच, मैं कਹਾਂ इनप्रॉम्प्टू स्पीच, मैं सपोज करा किसी स्टूडेंट को कहता भी स्पीच दो आके, ठीक है, तो उन्हें प्लान तो की नहीं, ठीक है, एकदम सोचना पै रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनप्रॉम्प्टू स्पीच, ठीक है। इनप्रॉम्प्टू वर्ड भी आप यूज करते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया। नेक्स्ट, टू स्नैप वनस फिंगर एट, ठीक है, तो यदा मतलब होंगे कि किसी को ललकारना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आंसर की हो जाएगा टू मेनटेन फ्रेंडशिप, नो। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, नो। टू गिव चैलेंज, ये, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, गलत। नेक्स्ट है जी कन्फेस। विच ऑफ द ऑपोजिट वर्ड अपना कन्फेस था। कन्फेस का मतलब क्या होंगे मैं तुहानू दसदा, ठीक है। ऑनेस्टली ये वाले ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन मेरे को पुराना क्वेश्चन पेपर नहीं सीगा, ठीक है, तो मैं यूट्यूब तो ही कोई वीडियोस देखी एंड उन्होंने तो ही मैं क्वेश्चन ये कंपाइल किए, ठीक है। एंड मैं देख रहा सी आंसर दस रहे थे, तो बहुत सारे चैनल से मैं देखे, मैं पीडीएफ भी देखे, लेकिन किसी ने तो आंसर नहीं दसिया। हालांकि इन्ना सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। कन्फेस का मतलब ये रिवील। ऑपोजिट वर्ड की हो जाएगा छुपाना। छुपाना मतलब की होंगे जी कंसील, टू हाइड। इन्ना ईजी क्वेश्चन यार, ठीक है। ਇਹਦਾ आंसर क्यों नहीं दसिया किसी ने, क्योंकि आंसर की दे आंसर नहीं दसिया सी, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं की गल सी, ठीक है। एंड ग्रांट नहीं होएगा, ठीक है, कंसीड तुसीं देख लो की है, ठीक है। एंड अगर ਇਹਦਾ एंटोनियम पूछा हुंदा, ठीक है, एंड एंटोनियम का मतलब की है, कन्फेस का मतलब की है कि एक्नॉलेज का मतलब की है एक्सेप्ट करना, तो ਇਹਦਾ मतलब भी एक्सेप्ट करना है, तो ਇਹਦਾ सिनोनियम ये वाला हो जाता, ठीक है। उन जो भी स्टूडेंट्स ने कोचिंग वगैरह की है बहुत अच्छी गल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स साढ़े नाल जुड़ रहे हैं जो बहुत जगह तो पढ़ के आए लेकिन सैटिस्फाइड नहीं सीगे। मैं भी नहीं कह रहा असं सैटिस्फाई करांगे कुछ करांगे, साडा कंटेंट असी खुद उस चीज़ को लैके कंटेंट आ मतलब श्योर है कि जो असी दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अमरेला बैच असी ज्वाइन किया है, ठीक है। एंड फीचर्स तुसीं देख सकते हो, पंजाब सारे एग्जाम्स कवर करेगा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है जी, कंसैप्चुअल क्लैरिटी है। एंड उस बाद क्लास पीडीएफ्स मिलेंगी, MCQ पीडीएफ मिलेगी एंड PY की बुक्स देवांगे, वो बारे बाद जो बैच आऊँगे वो गल करांगे। वो एक जस्ट सरप्राइज है, वैलिडिटी 365 दिन दी है जो तुसीं ज्वाइन करोगे। अपडेटेड सारा कंटेंट है, 2021 डाउट सपोर्ट होएगी एंड सारी फैकल्टीज़ न्यू दिल्ली दे ने, सारे ही अपने आप दे विच दुलंदर ने, ठीक है। टॉप फैकल्टीज़ ने न्यू दिल्ली दी मुखर्जी नगर से, ठीक है। इन्होंने रीजनिंग का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब असीं अपने वालों बेस्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। एंड असीं फीस जी हैगी है वो रीजनेबल है, दैट इज़ 8000, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए असीं इहनूं 5000 का दे रहे हैं जी। इलैक्ट्रिक इंग्लिश ऐप में डाउनलोड करो, ठीक है। अगर तुसीं इनरोल करना चाहते हो तो उत्थे जाके ये वाला कोड अप्लाई कर लो, ठीक है। तो फिलहाल दी वीडियो इन्ना ही, अगे कुछ होर अपडेट आएगी या फिर कोई होर सोल्यूशन देना होगा जल्दी मिलांगे। प्रेपोजिशंस स्टार्ट करनी ने, बुक दी प्रेपोजिशंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, सोचा हुआ। टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा हैटिक शेड्यूल है, बहुत टीचर्स को मैनेज करना पैंदा, खुद का कंटेंट देखना पैंदा, खुद के बैचेस चल रहे हैं, ऐप में देखना है, यूट्यूब में देखना है, बहुत सारी चीज़ें एवें दियां ने, ठीक है। आई एम मैनेजिंग ऑल अलोन, तो फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं स्टूडेंट्स को बेस्ट दे पावां, ठीक है, रीजनेबल प्राइस दे पावां। यही मिशन है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दिस इज फ्यूजनल साइनिंग ऑफ, बाय, ऑल द बेस्ट।